Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will continue from the question number 9. We are solving 10.2 and your question number 9 is a given vector A and B, find the unit vector in the direction of the vector A plus B. So in a previous class, we got to learn how to calculate a unit vector. Okay, and in this video we are asked to find the unit vector in the direction of the resultant of two vectors. Previously we were handling only single vector, and in this question we will handle the summation of the two vectors. So first of all, we quickly find out the summation of these two vectors. Minus I cap, j cap minus k cap. So you will say 2 minus 1 is I cap, and this will get cancelled, and 2 minus k is your simple k. Okay, so this is your resultant. Now we have to find the unit vector. So for the unit vector, we have the formula iota, the whole vector, which is iota I cap plus k cap, and in the denominator we will calculate the magnitude. So for the magnitude we use I का coefficient का square, k के coefficient का square. Simple. You will get I cap, k cap, and in the denominator √2, and then you separate it. So this is your unit vector. In this question, we are asked to find the vector in the direction of this vector. Okay. तो पहले इतना ही काम कर लेते हैं. Solution जो अभी किया वही repeat करना है, but the vector is different here. Let this be A. 5 iota minus 5 I cap minus j cap plus 2 k cap. अब इसका हम यूनिट वेक्टर दिखाएंगे, उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं आमतौर पर. So we will write the single vector. You can also write the formula for that. So this is the basic formula for the unit vector. इसी representation में हम चलेंगे. So मेरा unit vector क्या निकलेगा इससे? 5 I cap minus j cap plus 2 cap और नीचे magnitude, और magnitude कैसे निकालता है? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर which is -1 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर which is 2 here. So 5 I cap minus j cap plus 2 cap, and in the denominator it's 25 plus 1 plus 4. This will be your 30. Now you can separate it. 5 over √30 I cap minus 1 over √30 j cap plus 2 over √30 k cap. अब now next you are asked of which has magnitude 8 unit. जिसके पास 8 का मैग्नीट्यूड है. 8 का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो अब जो भी आपका आंसर आएगा दिस विल बी योर फाइनल आंसर. 40i over √30 minus 8 over √30 j cap 16 √30 k cap is your final answer. So question number next, 11th, show that the vector this and this are collinear. What do you mean by collinear? Means there are two lines. Basically vector is आपके दिमाग में एक as a line आना चाहिए. अब दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये वेक्टर है और मान लो दूसरा वेक्टर है ये. तो दोनों एक ही लाइन पे दिख रहे हैं आपको, तो यानी कि दोनों वेक्टर आपके कोलिनियर हो गए, है ना. हाँ, तो अब इसे सॉल्व करते हैं. इसका मतलब क्या है कि आप लिख लो यहाँ पर ए वेक्टर क्या है आपका 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap, और यहाँ पर बी लिख लो minus 4 I cap plus 6 j cap minus 8 k cap. अब इसमें देखो कुछ क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 -2 कॉमन ले लो तो आपका रहेगा 2 cap 2 I cap 3j minus 4k. अच्छा माइनस निकाला है तो ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, और ये माइनस हो गया तो ये प्लस.
तो ये पूरा का पूरा रिजेंबल कर रहा है, देखो, है ना, मल्टीपल ही हो गया। इफ अ वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ द अनदर, then our two vectors are collinear. So we could finalize this, or we could find this कि हमारा A vector is nothing but the multiple of B. तो जब भी ऐसा हो जाए means these are the collinear. So this is the question which asks us finds the direction cosine of the vector this. अब डायरेक्शन कोसाइन एक नई टर्म है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, यूनिट वेक्टर निकालना आता है, उसी में से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। वी नो दैट यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन में देखो, फॉर आपने ये यूनिट वेक्टर निकाला है ना, आपने उसका मैग्नीट्यूड 8 मल्टीप्लाई करके फाइनल पे निकाल दिया। तो जो आपको इसके कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं ना, ये आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट अलोंग विद द साइन, और के का कोफिशिएंट, यही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट से ए का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो वन बाय वन हम करके लिख देंगे। दिस विल बी योर आवर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, सो ए कैप इज इक्वल्स टू आर आयोटा प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आई का कोफिशिएंट 1, 2 का कोफिशिएंट 2, 3 का कोफिशिएंट 3। आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कितना हो गया ये, 9, 14, राइट। सो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ हमारा, आई का कोफिशिएंट 1/14, जे का कोफिशिएंट क्या बन गया, 2/14, और थ्री के का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3/14। सो दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला वैसे एनसीईआरटी में गिवन है, याद करने की जरूरत नहीं है। डोंट मेक दिस चैप्टर कंफ्यूजिंग विद लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, you just do the same thing with the simple concept of the unit vector. So the next question is find the direction cosines of the vector joining the point this and this directed from A to B. अब पहले तो आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं, suppose let this be A, let point this be a B, इन दोनों को जोड़ो, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा दे रखा हो, उसके लिए आपको क्या करना होता है, x2 माइनस x1 करना होता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 k कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपका है x1 x2। वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन फर्स्ट क्लास ऑफ दिस 10.2, एंड वहां पर हम दो डायरेक्शन में कर रहे थे, यहाँ पर तीन डायरेक्शन है, ठीक है, वही सेम है। ये अगर हमें जब भी डायरेक्ट वेक्टर ना दिया हो, पॉइंट्स दिए हो, पॉइंट्स का यूज कर कर हम वेक्टर्स तक पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर उसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम पॉइंट से वेक्टर बनाने वाले हैं, वेक्टर के बाद हम उसका यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं, यूनिट वेक्टर से फिर हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने वाले हैं। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी टू हैंडल दिस क्वेश्चन। So your x2 is -1, -1 I cap. Your y2 is -2, -2 k cap. Your z2 is 1 minus of -3 k cap. -2 I cap, -4 k cap, and this will your 1 plus 4, 4 k cap. Am I right? Yeah. So उसके बाद अब इसका निकालेंगे हम, let this be a। अब a का यूनिट वेक्टर निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, आई का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर -2 आई कैप -4 k कैप प्लस 4 आई, सॉरी इट्स j, sorry j
जे कैप, ये होगा आपका 4, 16, 16. This will be your -2 I cap -4 J cap +4 K cap divided 36. और इसके रिजॉल्व करोगे तो आएगा -2/6, है ना. अब हम डायरेक्ट इसकी कोफिशिएंट लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर, और अब इसके हम लिख दो कोफिशिएंट्स. अब लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन. -2/3 वो बाद में हम कैंसिल कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे. 4/6. So this is your -1/3 after get cancellation. -2/3. So this is your direction cosine. So we'll come on the next question. So in this question number 15, we have to find the position vector of a point R which divide the line joining the point whose positive vector are this and this in the ratio. आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, तो पहले तो आप ना आप ये दो वेक्टर्स इमेजिन कर लो. दिस इज योर वेक्टर 1 P, दिस इज योर Q. अब P की जगह लिखो आयोटा +2J -K कैप, और यहाँ लिख दो -I कैप +J कैप +K कैप. और यहाँ पर इसको बांट दो दो रेशो में, 2:1 जो गिवन है ना. हाँ, तो इसका निकालने का इंटरनली अलग होता है और एक्सटर्नली अलग होता है. इंटरनली के लिए आपके पास क्या होता है, बेसिकली यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, पहले वाले को दूसरे वाले रेशो के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, और दूसरे वाले को पहले वाले रेशो के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो. ये पहला वाला कंपोनेंट है, दूसरा वाला कंपोनेंट है, और आपको पहले वाले, आई रिपीट, पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले रेशो के कंपोनेंट के साथ, और दूसरे वाले वेक्टर को पहले वाले कंपोनेंट रेशो के पहले वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो करो, पहले वाला क्या था, आयोटा +2J -K is multiplied by 1. इंटरनल है तो प्लस, और फिर दूसरा वेक्टर क्या है, ये वाला, इसको यहाँ लिख लो -I कैप +J कैप +K इंटू 2, और नीचे रेशो का सम. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हाँ, तो यू विल गेट 2J -K कैप -आयोटा कैप +J कैप प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो 2 2 2 divided by 3. So what did you get here? I minus iota minus I cap plus 4J cap plus K cap by 3. ठीक है, तो ये आपका निकल गया पोजीशन वेक्टर. अब बात करते हैं एक्सटर्नल की. अब हमें पोजीशन वेक्टर एक्सटर्नली निकालना है, तो वापस से वो लिख दो दोनों वेक्टर. पी क्यू क्या थे हमारे, आई कैप +2J कैप -K कैप, and Q was -I cap +J cap. I will repeat if you will listen this time, so this will be your in your memory. ये था. अब हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाले वेक्टर को सेकंड वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड वाला वेक्टर को फर्स्ट वाले कंपोनेंट के साथ, और हम एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले करते हैं I cap +2J cap -K cap, माइनस आता है इधर क्योंकि एक्सटर्नली है, तो एक्सटर्नल में माइनस है. ठीक है, 2 -I cap +J cap +K cap ओवर सम हो जाएगा. ठीक है, अच्छा हाँ, नीचे भी माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 2 - 1. इंटरनली में एडिशन होता है, और एक्सटर्नली में दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता है. तो इट्स आई कैप +2J कैप. अब बस सॉल्व करना है इसको, विच इज वेरी इजी. 2I कैप -2J कैप
-2 k कैप डिवाइडेड बाय, वो तो 1 ही आना है तो बस इसको लिख दो, प्लस 1 इज है बाय 5 प्लस iota or 2 iota is your 3 I cap. 2 will get cancelled directly and -1 -2 is your 3 k. In this question, we will find the midpoint of the vector joining this. ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट दे रखे हैं, पहले वेक्टर बना लो जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 इज, चलो लिख ले, i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। उधर लिख लेंगे हम 4 माइनस 2 इज i कैप प्लस 1 1 माइनस 3 इज j कैप प्लस -2 -4 इज योर k कैप। तो ये हो जाएगा 2 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस, और ये हो जाएगा -6 k कैप, है ना। ये वेक्टर आ गया। अब इसका हमें निकालना है मिड पॉइंट। देखो इसमें वही मिस्टेक मत करना जो अभी मैं करने जा रही थी। आपको ना इनको लिख लेना है पहले, पी क्यू, हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो यानी कि ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, है ना, अलग अलग पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो 2 पॉइंट अलग अलग दे रखे हो तो उनका हमें ना पहले मिड पॉइंट निकालना है, वेक्टर नहीं बनाना है। आई रिपीट, हमें इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है कौन सा होगा, और हमें इसका वेक्टर नहीं बनाना है, लेकिन हम उसे वेक्टर फॉर्म की मदद से करेंगे। तो पहले हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या होगा आपका, लेट दिस बी ए विल बी योर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये हो जाएगा बी, वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, है ना, हो जाएगा। अब आपको इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि आप इसके इस वेक्टर को इस वेक्टर से आप ऐड कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, हमें बेसिकली ये निकालना है। तो दिस इज योर 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा, इसका 4 टू 8 आई कैप, 3 प्लस 1 इज 4 जे कैप, 4 -2 इज +2 कैप डिवाइडेड बाय 2। फिर हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के, सॉरी 4 प्लस 2 इज योर 6, so this is your 3 I cap 2 k cap plus k cap, this is your answer. In this question we need to show that with the point A B C with position vector this 5k form a vertices of a right angle triangle, ठीक है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, हमें ये शो करना है। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले तो हम इसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन ही कर लेते हैं, और इसके तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। योर पॉइंट ए विल बी ए बी सी, ये वेक्टर लिख लेते हैं। ये क्या है, 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, और इसको दो 2 आई कैप -j प्लस के कैप, और दिस इज योर आई कैप -3 जे कैप -5 के। अब सबके, क्योंकि अब हमें ये शो करना है कि ये एक ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है पाइथागोरस से होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें पता है ये होती है ना। और हमें यही कुछ प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें इनका वैल्यूज पता होनी चाहिए, ए सी ए बी बी सी है क्या। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे, फिर सी बी का निकालेंगे।
तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बेसिकली दिस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा होगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। देखो कितना हो गया, 2 माइनस 3 इज माइनस i कैप माइनस j माइनस माइनस प्लस 3j कैप प्लस k, 1 minus 4 is 1 plus 4 is your 5k कैप। ऐसे ही अब निकाल दो BC। सो BC के लिए क्या करोगे, B वाला लिखोगे फिर C में से माइनस करोगे। योर C वाला इज I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल्स टू 2 minus 1 is I 1 और माइनस 1 प्लस 3 is 2j कैप, k प्लस 5 is your या 6k, है ना। और उसके बाद फिर हमें निकालना है CA। तो CA के लिए क्या करेंगे, C में से C वाले वेक्टर लिखेंगे पहले और फिर उसे माइनस करेंगे हम दूसरे वाले में, ये जो A वाला है ना, 4j माइनस 4k। तो ये आपका क्या बना, I माइनस 3 इज योर माइनस 2i माइनस 3 प्लस 4 इज योर j माइनस 5 प्लस 4 इज माइनस k, है ना। अब जल्दी से यहाँ पर इन सबके ना चलो नीचे कर लेते हैं, इन सबके ना मॉड निकाल दो, BC और CA सबके मॉड। तो कितनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, यू विल बी वेरी एप्ट फाइंडिंग आउट दीज मैग्नीट्यूड्स इन यूनिट वेक्टर्स। सो देखो भाई, ए बी का निकालने के लिए आई का कोफिशिएंट क्या है, -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 5 स्क्वायर। बीसी के अंदर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, 2 का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, 6 का कोफिशिएंट 6 स्क्वायर। सीए के अंदर ये कंसीडर कर रहे हैं तो भाई आई का कोफिशिएंट -2 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1, सॉरी -1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 25, this will be your 1 plus 4 plus 36, this will be your 4 1 plus 1। तो ये आपका क्या आता है यहाँ पर से, एंड सिंस वी नीड टू फाइंड दी स्क्वायर्स तो अभी स्क्वायर कर लेते हैं। जब स्क्वायर निकाल दोगे तो फिर इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। अब स्क्वायर तो रूट से कैंसिल ही हो जाना है तो इसको तो लिखते ही नहीं है। तो बेसिकली आपकी यहाँ वैल्यू क्या आती है, इसमें आएगी आपकी वैल्यू 35 और इसमें ऐड कर लो, ये आपका बनेगा ऑलमोस्ट 41 और ये आपका बनेगा 6, है ना। तो अब आप अगर देखोगे तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है जिसके अंदर 41 इज इक्वल्स टू 35 प्लस 6 है। तो ये हमें दे रहा है ना, ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, पाइथागोरस की जो थ्योरम थी, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। So finally, this triangle is a right angle triangle. We have shown this.